ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ, ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਰਾਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 36,000 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 36,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 415 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 415 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਰੇਟਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਖੱਡ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90% ਜਾਂ 80% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਫਸ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿੱਚੇ ਭਰਾਈ,
ਵਿੱਚੇ ਸਦਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5.5 ਰੁਪਏ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੱਸਿਆ जा रहा है। देखिए, ये पैम्फलेट आज हम बांटने जा रहे हैं लोगों के बीच में। इसमें लिखा है भाजपा का काम झेल रहे हैं आप। इसका कारण ये है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आपको जैसे पता है कि 40 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और उसके बाद अब एक 5 रुपये की राहत दे दी गई। और जैसा मैंने बहुत बार बोलते हुए बोला है कि 40 रुपये एक आदमी की जेब में से निकाल लिए और 5 रुपये डाल दिए। ये पूरी लूट है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है। और महंगाई का आलम आप देख लीजिए, दाल के दाम क्या हैं, टमाटर के दाम क्या हैं, सब्जियों के दाम क्या हैं, दूध के दाम क्या हैं, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है। आपने उज्ज्वला योजना शुरू की, ऐसी उज्ज्वला योजना का क्या फ़ायदा कि जे लोग गैस का सिलेंडर ही ना भरवा सके। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे चंडीगढ़ के अंदर ये 7 दिन का एक अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने का। ज़्यादातर लोग तो जानते हैं लेकिन हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो देश की जनता को पता होना चाहिए कि ये हमारा टैक्स का पैसा जो हम सेविंग करते हैं आज ये वो भी खा रहे हैं। बिल्कुल सर, यही चीज़ तो हम जनता को बताने के लिए जा रहे हैं कि जो हम दिन रात लग के, पहले आदमी 8 घंटे काम करता था, अब तो 18 घंटे काम कर रहा है इस सरकार के अंदर और अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा वो। ये एक तरीके से गला घोट रहे हैं मिडिल क्लास का और लोअर क्लास तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग एक दरिया एरिया है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हम लोग प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो दिन के अंदर 200-300 रुपये कमाते हैं और वो भी हमें नहीं, मतलब एक तरीके से भीख मांगने वाली सिचुएशन आ चुकी है उनके घर के अंदर। देखिए, हर चीज़ तो बिकाऊ है, हर चीज़ बिक चुकी है, हर चीज़ प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। नौजवान साथियों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इकोनॉमी जाएगी कहाँ, मेरे को एक बार बताइए। सारा तो इन्होंने बंद कर दिया, सारा तो बेच दिया। इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी, मेरे को एक बार बताइए आप। इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से होगा रोजगार, बिजनेस, धंधे, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, ये रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट प्रेस, आयुध फैक्ट्री, सब तो इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी, एक प्रकार से बेच डाला है। तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੱਕ ਜਲ ਗਿਆ। मेरी बेटी की निकाह कर दिया रहना, नहीं जलाना तो मेरे जी मेरा कान का पैर से निकाह है मेरी बेटी ਫੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਦੇਖ ਲੈ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
आराम दे लगोगे आराम ना कोई आग लग गया, पता नहीं जी कैसे लग गया सब कुछ। मेरी बेटी ने ब्याह भी है, मैं कहाँ से क्या करना, मेरे पास तो बिछौना भी नहीं रहा जी। कब है आपकी बेटी की शादी? 2 महीने में शादी है बाबूजी, मैं क्या करना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा बाबूजी, सब जल गया, मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा। कहाँ कितना नुकसान हो गया आपका जी? कितना नुकसान हो गया आपके घर में? कितना पैसा पड़ा था? पैसा 2 लाख काल ले आए थे, 10,000 वो ले आए थे, इसका पापा खाना तो भाई निकल गया। बहुत पैसे जल गए साडे जेड़े ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ जल गए। कुड़िए कितना लगी है वो क्या आगे किस तरह लगी? रुपया सारे जल गए। आगे नहीं पता कैसे लगी। मैं तो बढ़ती थी बाबूजी, उसमें चूल्हा बना रही थी, मेरे को नहीं पता कुछ भी नहीं रहा बाबूजी, कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे बेटी जवान 2 है मेरे सिर पर, सब चले गया बाबूजी, मेरे पास कुछ नहीं रहा बाबूजी, ओढ़ने बिछाने भी नहीं रहा बाबूजी मेरे पास। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो घास की भक्ति रानी के नाम से हाल में होते ही एक मानो न मानो दिन में एक परिवर्तन आता है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, सत्ता से यदि अंग्रेजों को भगाने में वहां से शुरुआत हुई है, आज स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र नागरिक बड़े सम्मान के साथ में छाती तान के हम चलते हैं। इन लोगों का बलिदान कभी भूलना नहीं चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण का जब सवाल आता है तो सर्वप्रथम महिलाओं का उनका हक हमेशा मिलना चाहिए। प्रजातंत्र में कुछ रिजर्वेशन है, शुरुआत अच्छी है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन क्योंकि ये महिला भवन होते हुए भी इसमें अब हमने जेंट्स को भी एंट्री दे दी है, तो उनको वेलकम करने के लिए मेरा आज यहाँ पर आना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देने आई, आप लोगों का धन्यवाद करने आई हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है ऑडिटोरियम, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब लोग। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਲ 2015 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। आज सेक्टर 38 में रानी झांसी भवन जो एक महिला भवन जो बनाया गया था उसका बाकी काम पूरा हो गया था, मगर ऑडिटोरियम का लगभग 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और
हाईटेक ये ऑडिटोरियम का आज जो है वो शुभारंभ गवर्नर साहब के हाथों से किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ वासियों को और ख़ासकर महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो अपना महिला भवन है ये एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई भी एक्टिविटी करनी हो या कोई और काम करना हो तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। इस मौके ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਗਿੱਧਾ, ਸੋਲੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कुछ लोग एक्सपर्ट जाने चाहिए जो चंडीगढ़ के बारे में जानते हों, चंडीगढ़ बनाने में जिनका बड़ा भारी योगदान हो। ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उनके लिए हम एक जिसको कहते हैं अलग से उनके लिए हम सोच विचार करके उनको टिकट देंगे। एक तो मेरा ये बहुत इस बार मैंने जो अहम फैसला लिया है पार्टी के अंदर, और दूसरा मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस कॉरपोरेशन के अंदर पढ़े लिखे भेजे जाएँ, क्योंकि जो नौजवान जाता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और आज का जो नौजवान है वो हमारी पीढ़ी के लोगों से ज़्यादा वेल एजुकेटेड है राजनीति के लिए। तो ये 2-3 प्रयास मेरे हैं, आप देखते हैं, आपका सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, कितना लोग आगे आते हैं, कितने समय 10-15 दिन में बताएगा। दूसरा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो हमेशा चुनाव की तैयारियों में ही लगी रहती है। 2 साल से करीब करीब चंडीगढ़ कांग्रेस भी लगी हुई है। आपने देखा होगा हमने बहुत से प्रदर्शन किए, तेल के मामले में हम कई प्रदर्शन कर चुके हैं। पीछे आपने देखा होगा कॉरपोरेशन के बाहर हमारे हज़ारों के तादाद में इकट्ठे हुए, पानी के मामले को हम लगातार लड़ रहे हैं। हमने बीजेपी के पार्षदों का घेराव किया, उनको मजबूर किया कि हाउस में रेजोल्यूशन लेके आएँ कि पानी के रेट कम करेंगे। हालांकि वो धोखा करके चंडीगढ़ की जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया था वहाँ जाके गवर्नर हाउस में जाके उसको अटका दिया। अब बताइए, हाउस उसका रेजोल्यूशन पास करे, आप ही का गवर्नर हो, आप ही का एमपी हो, आप ही का एडमिनिस्ट्रेटर हो, सारा कुछ, उसके बाद क्यों रेट वहाँ से कम होकर नहीं आए? एक फेलियर नहीं है। डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड है आज, जो वो छोटा डंपिंग जो कांग्रेस के समय में प्रॉब्लम हमारे समय में भी थी, पर इतनी गंभीर हमने कभी नहीं होने दी कि लोग वहाँ बीमारी से मरने लग जाएं, लोग कैंसर से पीड़ित होने लग जाएं। आज पहाड़ बन गया है। और तब जब एमपी ने कहा था कि मेरा पहला काम होगा डड्डू माजरा डंपिंग रोड को ख़त्म करना, राजेश कालिया जी जिस दिन मेयर बने जाके वो ऊपर चढ़ के वहाँ फ़ोटो खिंचवाते रहे कि मैं तो यहाँ से कूड़ा बिनने वाला हूँ, मुझे यहाँ की प्रॉब्लम पता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कूड़ा बिनने वाले ये देखने गए कि कितना ऊंचा तक जा सकता है। कॉरपोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार बड़ा भारी मुद्दा रहा। आप ही के चैनल पे भी आता रहा कि सफाई कर्मचारी को रखने के पैसे मांगे गए, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे मांगे गए, जैम पोर्टल के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है। लाइंस कंपनी की जो मशीन लाई है उसके सैकड़ों आदमियों की रोज़ी रोटी में लात मार दी गई, और फिर सफाई की व्यवस्था बहुत नीचे चली गई, 26वें नंबर पे, कभी 25वें नंबर पे, जबकि पहले 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर पे भी चंडीगढ़ एक बार आया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी तैयारी का एक हिस्सा होता है कि हमने लोगों तक अपनी आवाज़ लेके कैसे जाना है। चंडीगढ़ में जो हालात इस वक्त सड़कों की है, जो हालात इस वक्त पार्कों की है, वो हमने 40 साल के इतिहास में नहीं देखी। अभी भी हम निकल के आए हैं, बड़ैल गांव गए थे एक फंक्शन में, मैं हैरान हो गया कि ये क्या वही बड़ैल है या एक कोई इस्लाम कॉलोनी बन चुका है। आज मुझे अंदर जाने का, जो बड़ैल का बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, उसमें जाने का मौका मिला। मुझे दुख हुआ है इस बात का कि ये जानकारियाँ मेरे तक भी नहीं थी। क्या मुद्दे नहीं बनाने चाहिए? आप ही बताइए, आप भी तो शहर के नागरिक हैं। जो पत्रकार है चंडीगढ़ का, वो पत्रकार के साथ साथ वो भी तो चंडीगढ़ की सड़कों पे घूमता है। आपका भी स्कूटर कार पंचर होती होगी, आपको भी तकलीफ़ होती होगी जब सारी गाड़ी सवेरे धो के निकलो और शाम को सारी छत पे ऊपर मिट्टी लगी हो। चंडीगढ़ में तो ये नज़ारे नहीं थे। मुद्दा बनेगा, मुद्दा बन चुका है। मैं आपको ये कहूँ, शायद हमें इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत ना पड़े। लोग ही अब हमारे पास आके कहते हैं कि जी देखिए ये हमारे शहर का हाल हो गया। गांव में तो बहुत बुरी हाल है। गांव में तो ऐसे लग रहा है जैसे दड़ुआ में मुझे जाने का मिला, वो लोगों ने बताया कि जो पिछली बारिश आई हम किश्ती में आए अंदर,
मैं तो हैरान हो गया सुन के। ये बॉम्बे में कभी सुनते थे या दूसरे इलाके में, जब बिहार वगैरह में जब बाढ़ आ जाती तो किश्तियाँ चलती थी, अब चंडीगढ़ में चल रही हैं। धन्यवाद बीजेपी का, उन्होंने हमारे चंडीगढ़ को बिहार बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया। वेंडर वो है बेचारा जो 700-800 हज़ार रुपये की टोकरी में सामान लेके आए, 4 दिन बैठे और 200-300-400 रुपये रोज़ कमा के ले जाए, इसको वेंडर मानते थे। या सड़क के किनारे कुलचे छोले वाले, जो जिनको लोग तंग, जिसकी ज़रूरत थी शहर में, अब मैं और जा रहे हैं, मुझे भूख लगी है, 10-15 रुपये 20 रुपये में हमें रोटी मिल जाए। आज वहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेंडर ने 2 वेंडर ले लिए, 2 साथ वाले ख़रीद लिए, कुर्सियाँ लगा रखी हैं, नॉन वेज सर्व हो रहा है, रात को वहाँ शराब पी जा रही है। ये हाल हो चुका है चंडीगढ़ का। तो इसका असर दूसरे जो साथ वाले गरीब वेंडर थे उन पे पड़ चुका है, इसीलिए बेचारे वो भूखे मर रहे हैं। जब हम आएंगे कॉरपोरेशन में, इसका हम सही हल निकालेंगे। इसका संबंध होना चाहिए उसकी आमदन कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, क्या उसके पास, अगर वो उसकी कोठी है, उसका बड़ा मकान है, उसके बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं, उसकी बीवी सर्विस करती है, वो वेंडर कहाँ से हो जाएगा? ये आती नहीं है। ये किसके पीठ में छुरा मारा गया? उस गरीब आदमियों के जो सही मायने में वेंडर थे, आज उनकी हालत बुरी हो चुकी है। दूसरी बात, अब हर चीज़ में पैसे लोगे। कांग्रेस ने भी तो यहाँ 45-50 साल राज किया है, कारपोरेशन में हम भी 15 साल रहे, हमने तो वेंडर से कभी फीस नहीं ली। उधर चंडीगढ़ के सैक्टर 16 के सरकारी अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ रेडियोग्राफी डे मनाया गया। इस दौरान पूरा स्टाफ उत्थे मौजूद रहा। नालों नाल सैक्टर 32 के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी उत्थे मौजूद रहे। इस दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर सुमन सी ते गेस्ट ऑफ ऑनर MS नागपाल ते परमजीत मौजूद रहे। इस तो इलावा इस प्रोग्राम में सैक्टर 32 हस्पताल PGI के डॉक्टर भी शामिल रहे। इस प्रोग्राम नूं होर रंगीन बनाउण दे लई इत्थे डांस, सिंगिंग ते भंगड़ा ते होर भी कई तरह के प्रोग्राम किए गए, जिसका डॉक्टर स्टाफ, चीफ गेस्ट ते MS सारिਆਂ ने आनंद माणिया। सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़रां स्टेज ते टिकियां होईयां सी। आज सेक्टर 16 के प्रांगण में वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के ऊपर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सेक्टर 16, सेक्टर 32 और PGI के तो रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। आज इस कार्यक्रम में शिरकत के लोगों ने, और यहाँ पर उन्होंने रेडियोलॉजी के अंदर जो है विकिरण के मामले में जो भी कुछ नई जो चीज़ें आ रही हैं दुनिया के अंदर, जो नई नई चीज़ें हैं, शोध हो रहे हैं उसके लिए, उसके बारे में यहाँ पर स्पीकर से उसके बारे में जानकारी दी। और यहाँ चंडीगढ़ के स्वास्थ्य निदेशक जो हैं डॉक्टर सुमन सिंह ने इसका उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम बहुत ही कामयाब रहा। इसमें तीनों सालों का आपस में समन्वय जो है वो देखते ही बनता था। 8 नवंबर 2021 जो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के बाद आज के दिन जो गवर्नमेंट स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो चंडीगढ़ का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने एक CME ऑर्गेनाइज की, जिसमें PGI मेडिकल कॉलेज 32 और 16 के रेडियोग्राफर्स ने और रेडियोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने यंग बच्चों को एक एनकरेज किया कि वो आगे बढ़ के एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाला भविष्य इन बच्चों के हाथों में जाएगा वो अच्छा रहे। और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। उस CME के बाद एक कलरफुल कल्चर प्रोग्राम हुआ, जिसमें सभी डेलीगेट्स और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बहुत इंजॉय किया, और भविष्य में हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं। रुख मौसम का कर लेने तो दस दिन कि अज का तापमान किस तरह का रहा। तो दस दी कि अज वध तापमान 29.2 डिग्री सैल्सियस से घट्टो घट्ट तापमान 12.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तो अज के इस बुलेटिन के पासे नहीं, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।